Can you hear me? Can you hear me? Please tell me. क्या आप मुझे सुन सकते हो क्या? बताओ जल्दी से. All right, people. नमस्ते 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 रसगुल्लो. अभी बताओ आवाज आ रही है क्या? कैन यू पीपल लिसन टू मी? आवाज आ रही है क्या? मैं दिख रहा हूं, आवाज आ रही है क्या? बताओ. ऑल राइट, जय शिव शंभो. शुरू करें फिर. तो आज बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. आप में से कितने स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट ये दिसंबर 2021 में है? आई रिपीट, how many of you are going to give the attempt in the December 2021? Please let me know first, and post that we will be going ahead. Acha, I am only requesting those students who are joining today. I am only requesting those students who are joining today. So please let me know how many of you are expected to give your attempt in December 2021. Because my strategy would be different for both the kids. So there are two types of kids which we are expecting in this batch. One is who are going to give their attempt in December 2021. December 2021 and June 2022 or May, you can say. May or June, as the case may be, the exam would be conducted. उसके हिसाब से please let me know. So you all are new students, that's what you say. All right, perfect. So beta, today I am going to give you only an introductory session today. ये क्या लिख रहा है? अच्छा, कोई किसी को भी मैसेज नहीं करेगा, राइट? ये जो बच्चा बोल रहा है तरंग वगैरह कि मैं कोई ग्रुप बना रहा हूं और उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, कोई मैसेज ना करे. ऑलराइट, सो अब नाउ जरा ध्यान से सुनना. जो मई 2022 या जून 2022 है, यू डोंट हैव टू वरी मच, क्योंकि आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा. तो अभी जहां पर आग लगी है, वेर वी हैव टू फोकस मच, इज व्हाट द December 2021 अटेम्प्ट. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट योर पोर्शन वुड बी कवर्ड 60% live and 40% would be covered through the backup lectures which will be provided to you on immediate basis. And you should watch this lecture on day-to-day basis. Only on the basis of that you can tell that you'll be able to cover your December 2021 attempt. Okay, today I am not going to start with any of the new topics or anything of that sort, and that's the reason I started a little late. We are today going to have a glimpse of what is the syllabus of the accounts and how we are going to go ahead in that. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 60% लाइव होगा एंड 40% बैकअप, और आई कैन से रिकॉर्डेड लेक्चर होगा. दिस इज गिवन टू यू सो दैट यू पीपल कैन प्रोग्रेस विथ योर सिलेबस एज पर योर ओन स्पीड, एंड यू डोंट हैव टू वेट एंड वॉच कि भाई कब ये सिलेबस कंप्लीट होगा. सो सिलेबस का प्रेशर फिर आपसे हट जाएगा. ऑलराइट, नाउ सेकंड थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड दिस इज योर फर्स्ट क्लास and you are going to give it in December 2021. जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिनके ये फर्स्ट क्लास है और December 2021 में ये बच्चे एग्जाम देने वाले, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? प्लीज लेट मी नो. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे बताना. May 22 और June 22 यू डोंट हैव टू वरी, आपको सिर्फ ओनली लाइव करना है, ओनली लाइव करना है एंड रिलैक्स होके करना है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. कैन वी रजिस्टर now for the exam? Not immediately beta. May 22 100% live है. Okay, so there are few people whose first class is today what is of
CA foundation and you happen to be from science background, so I'll tell you it is not impossible कि आपका दिसंबर 2021 का अटेम्प्ट क्रैक होगा कि नहीं होगा. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आराम से हो जाएगा. इट जस्ट दैट यू नीड टू बी इन टच विथ मी. फर्स्ट पॉइंट, आपका एक ग्रुप बनेगा, आपको मेरे साथ बात करते रहना है कंटिन्यूअसली, राइट, रेगुलरली, और आपको कुछ और असाइनमेंट भी दिए जाएंगे एंड यू नीड टू कंप्लीट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेकंड थिंग that you need to watch few basic lectures which I'll be giving it to you. So as I said, if you are from science background, so we'll be forming a group of you people, and on the basis of that group we'll be interacting with you all. Okay, so science background, it is possible, but you have to work little more. You have to work little more. So remember this. So if you are targeting December 2021 attempt, I'll tell you everyone कि अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, सर मैं अभी चालू कर रहा हूं, तो क्या मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पहला आंसर आपको दे दूं कि बेटा जी दिसंबर 2021 यही वाला अटेम्प्ट आपको टारगेट करना है. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपका लॉस कुछ है ही नहीं. क्या लॉस है बताओ मुझे. अगर आप ये अटेम्प्ट देते नहीं हो तो भी आपका ये अटेम्प्ट तो वेस्ट ही जाने वाला है, राइट. May 22 का देने वाले, तो आपको मैं क्या बोलूंगा कि दिसंबर 2021 इज द बेस्ट अटेम्प्ट. यू कैन गो एंड गिव अ ट्राई, क्योंकि अगर आप पास हो जाते हो तो देन देयर इज नथिंग फॉर यू टू वरी. तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स अगर कुछ भी वीक नहीं रहेंगे. यू ऑल विल बी स्टिल डूइंग वेल एट इंटरमीडिएट. द लॉजिक इज वेरी सिंपल, क्योंकि इंटरमीडिएट में बेटा जी 8 सब्जेक्ट है और फाउंडेशन के सिर्फ 2 सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड होते हैं. एक होता है अकाउंट्स और एक होता है मैथ्स. सॉरी, एक होता है अकाउंट्स और एक होता है लॉ, और लॉ का भी बहुत छोटा पोर्शन. यू डोंट हैव टू वरी मच कि इंटर में कैसे क्या होएगा वगैरह वगैरह. ग्रुप कब बनेगा? ग्रुप बनने के लिए बेटा जी एज एंड व्हेन वी गो रेगुलरली, आपकी रिसीट्स देखकर और आपका मार्कशीट देखकर फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा. एग्रीड. तो ये मैं इस बार साइंस बैकग्राउंड का ग्रुप बनाऊंगा और इस ग्रुप के थ्रू वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन केस यू हैव गॉट अ क्वेरी. तो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो मैंने अभी तक देखा है वो बता दूं कि ये बच्चा डरता बहुत है, इसलिए तकलीफ होती रहती है, एंड दैट इज द रीजन we are little worried for the science background students. Otherwise they do really wonderful, so nothing is impossible for them as well. All right, now let's go on friends, and we are going to now start with the introduction of your syllabus today. तो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि यू प्लीज राइट डाउन दिस सिलेबस फॉर यू ऑल. ये सिलेबस आपको लिख लेने का है. ओके, हियर वी गो. तो सिलेबस ये रहा राजा बेटा जी. आई विल जस्ट जूम इन. तो द फर्स्ट नेम ऑफ द टॉपिक इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. सभी लोग बच्चे लिखेंगे पहले इसको. क्विक ओपन अ नोटबुक एंड राइट डाउन द सिलेबस, बिकॉज इसके बेसिस पर अभी मैं आपको एनालिसिस दूंगा और कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. अच्छा, 11th-12th में जो मार्क्स मिले उसको जितना जल्दी भूल जाओ उतना आपके लिए इजी होगा और अच्छा होगा. सो स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस सिलेबस एंड 11th-12th को भूल जाना. तुम बोलोगे सर ये तो 11th-12th में भी था. भाई साहब थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, 11th-12th में था तो, बट 11th-12th में होने की वजह से ये सोचकर मत चलना कि आप हो जाओगे. तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहला वाला है. ओल्ड स्टूडेंट्स को देखना है क्या? मैंने कहा था कि नहीं देखना है. दिस इज ओनली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स. आज की बैच, ये जो अभी बैच चल रही है, दिस इज ओनली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स. आई हैव वेरी क्लियरली सेड दिस. तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंट्स बोले तो एंट्रीज, बिल्कुल सही. फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू कैन कॉल इट एज. राइट डाउन नेक्स्ट capital and revenue expenditure and receipts. Capital and revenue expenditure and receipts. Contingent assets and contingent liabilities. Contingent assets and contingent liabilities. Then you have got recording of transactions.
Recording of transactions. Again, you can write down cash book and bank reconciliation statement. Cash book and bank reconciliation statement. Slow and steadily write down rectification of errors. Rectification of errors. Write down inventories. Next topic, inventories. Next topic is inventories. Then write down concepts and accounting of depreciation. Concept and accounting of depreciation. Going ahead, next, bills of exchange and promissory note. Bills of exchange and promissory notes. Bills of exchange and promissory notes. Next, sale of goods on approval or return basis. Sale of goods on approval or return basis. Sale of goods on approval or return basis. Next, consignment. See, aspirant Omkar, please spam mat karo yaar. I am teaching something right now. Please understand. Consignment. After consignment, write down average due date. Average due date. Then write down account current. Write down account current. Then you have got final accounts. Final accounts. Write down the next, partnership. Partnership. Next topic, company accounts. Next topic, company accounts. Then, boys and girls, you have to write down the name of the last topic. It is called as financial statement of not for profit organization. Financial statement for not for profit organizations. So this was the syllabus. Financial statements for not for profit organization. So this is the syllabus. Thank you so much, Jubair Sheikh Saab. Thank you so much. I hope you are doing well. ऑलराइट डन. अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो हो गया सिलेबस, बट मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि सीरियस लोग चाहिए कि हमें सिंसियर लोग चाहिए. हमारे फाउंडेशन के कोर्स में या सीए के कोर्स में हमें चाहिए एकदम सिंसियर लोग. सीरियस लोग कहां होते हैं? आईसीयू में. ऑलराइट, तो मुझे मेरे बच्चे कैसे चाहिए पता है क्या? कि जो दिन भर खुश रहे,
हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, ऐसे वाले बच्चे ही सीए आराम से कर पाते हैं। तो तुम्हें अगर लगता है कि बहुत सीए टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझे बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, भाई साहब मैं अभी तक का एक्सपीरियंस बता दूं, सीरियस लोग आगे नहीं जा पाते। तो रिमेंबर दैट कि बेटा जी आपको एकदम खुशनुमा रहना, यू नीड टू बी हैप्पी एंड यू नीड टू बी हैप्पी जेन्युइनली, यू सी। ऑलराइट, तो अब हम शुरुआत से जब हम बात करना शुरू करेंगे, एवरी लेक्चर विल स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स ऑफ आवर बैच। तो एवरी लेक्चर शुड स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। सो व्हेन आई से यू गिव अ स्माइल, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गिव अ स्माइल। सो गिव मी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, और उसी स्माइल के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। Agreed? So you should always remember that your lecture will start with a beautiful smile. Rule number 2. Whenever you are studying, the point 1 is कि हमें हमेशा एक रूल ध्यान में रखना है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, व्हाट डज दैट मीन? ब्रिटिशर सिखाकर गए थे, हम सीखे नहीं अच्छे से। तो डिवाइड एंड रूल, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो बेटा जी आप ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं मिले होंगे जो हमेशा हारता ही रहा है, और आप ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं मिले होंगे जो हमेशा जीतता ही है। Right? You will never ever find a person who has always won, and you will never ever find a person who has always lost. So remember that if you keep consistently trying, then my dear friends, you will win. In the long run, you will win. तो मुझे मेरे बच्चों से एक ही चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। ऐसे कई बार होता है कि क्लास में फर्स्ट गो में जब टीचर समझाना शुरू करता है तो किसी एक बच्चे को समझ में आ जाता है और एक बच्चे को समझ में ना आए। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों बच्चों में कोई ऊपर है कोई नीचे है, हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग टाइम फ्रेम में या जोन में रह रहा है। अगर आप ये मुझे बोलना चाहते हो कि सर सभी को एक साथ समझ में आएगा, तो मुझे बताओ क्या सभी की ड्राइंग्स एक जैसी है क्या? सभी की हैंडराइटिंग एक जैसी है क्या? सभी की आवाज एक जैसी है क्या? राइट? सभी के एम्स एम्बिशंस एक जैसे है क्या? बेटा जी जब हम अलग अलग टाइप के लोग हैं तो हम कोशिश करते हैं एज अ टीचर कि आपको मेजॉरिटी केस एक गो में समझ में आ जाए। बट बेटा जी इसका मैं कोई दावा नहीं करता कि आपको फर्स्ट गो में हर बार समझ में आएगा। और मुझे ये क्यों बुरा लगता है कि बेटा जी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को ऐसे गुमराह भी किया जाता है कि नहीं भाई साहब ये तो हो जाएगा। अरे हो जाता है मेरे भाई, बट क्या है कि कौन से स्ट्रोक में होगा। तो आपको मैं आज प्रोसेस समझाने आया हूं कि भाई साहब आपको अब आगे जाकर क्या क्या करना है। सो प्रोसेस का रूल नंबर 1 ये है कि यू शुड नॉट गिव अप वेरी इजीली। गिव अप नहीं मारना है। So if you know कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका यह मतलब नहीं कि धड़ाधड़ क्वेरीज ड्राफ्ट करो। हमारे क्लास का एक सिद्धांत है, रूल है कि मैं आपको कहूंगा कि आई हैव डन विथ नाउ माय होल एक्सप्लेनेशन, इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। तो आपको क्वेरी मुझे कब पूछनी है? जब मैं ये कहूंगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है, उसके बाद में आपने मुझे क्वेरी पूछनी है। एग्रीड? बट भरोसा मानिए ये तय मैं आपको बात बता दूं कि बिना आपके क्वेरी सॉल्व किए मैं आगे नहीं जाऊंगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप बाकी के बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में बेटा जी इट विल नॉट बी गुड फॉर द होल क्लास, और सिलेबस ड्रैग करता है, लेट होता है। तो इसकी वजह से आपको एक बात बता दूं कि बेटा जी आपको क्वेरीज जो है बहुत थोड़ा सा सोच समझ के फिर पूछना है। ऐसा नहीं कि जो चीज मैंने पढ़ाई हुई है वही चीज तुम पॉटी में चले गए थे तो फिर पॉटी से वापिस आए, अरे सर आपने तो ये चीज बताई नहीं। नालायक गधेड़े, जब पूरा लेक्चर बैठो तब जाके मुझे क्वेरी पूछना, कल का लेक्चर बैठो तो आज क्वेरी पूछना। ऐसा बिल्कुल भी काम मत करना कि आप बिना सोचे समझे क्वेरी पूछ रहे हो। तो बेटा जी एक चीज मैं बता देता हूं कि आई प्रॉमिस यू आर सिटिंग एट ईयर राइट, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू थ्रू माय हार्ट कि मैं आपको हर एक चीज पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, एंड एट द सेम टाइम आई विल बी वेरी फेथफुल टू माय प्रोफेशन। आई विल बी कंप्लीटली फेथफुल टू माय प्रोफेशन, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए, तो दैट ग्रोथ कैन ओनली कम थ्रू यू। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं कहां से परफॉर्म कर दूंगा? बताइए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही मैं आगे जा पाऊंगा ना। तो बेटा जी कोशिश ये करना कि बेटा जी इस क्लास को एक डिसिप्लिन्ड मैनर में हम चला पाए। ऑनलाइन में अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये चीज हमें पता चली कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है बिकॉज द क्लास डजंट गो इन द डिसिप्लिन, एंड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग टू मेंटेन दिस क्लास इन कंप्लीट डिसिप्लिन। सो आई होप यू पीपल विल ऑल्सो एग्री एंड अप्रिशिएट दैट कि हम इस क्लास में डिसिप्लिन और एक जो डेकोरम है क्लास का वो मेंटेन करके रखेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सेकंड चीज, इस क्लास में एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे। अकाउंट्स का सिलेबस वास्ट है, इसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 12th का सिलेबस, सो भाई साहब 12th का सिलेबस आपने 12 महीने 9 महीने पढ़ा था राइट, और वो सिलेबस भी इससे छोटा था। और राजा बेटा जी 12th में फेल होना बहुत मुश्किल हो गया इंडिया में मतलब मेरे को तो ऐसे लोगों से जाके मिलना है कि वो महारथी लोग हैं जो अभी के रिजल्ट में भी
फेल हो गए, मुझे उन लोगों को जाके मिलना है, बट बाकी मैं बता दूं फेलिंग इन 12th इज वेरी डिफिकल्ट। तो अपने 12th के परसेंटेज की पुड़िया बनाकर डाल देना अपनी जेब में। समझ में आ रही है ना बात? 12th के रिजल्ट के बारे में है ना ज्यादा हो हल्ला मत करना, श्योर मेरे को है ना 96% मिले, 94% मिले। भाई साहब मेरी बात सुनो, अब क्या बोलने को मत लगाओ यार, तुमको भी मालूम है मुझे भी मालूम है। कई को अभी तुम्हारे माँ बाप को बहुत खुशी होती है, और मैं तुम्हारे माँ बाप को कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि खुशी होती है, बहुत बढ़िया चीज है, बट ये 12th के परसेंटेज मायने नहीं रखते मेरे भाई। मैंने देखा है मेरी आंखों से 94% मिली हुई छोरी फेल हो गई फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरी आंखों देखी बातें बता रहा हूं। क्यों फेल हो गई? क्योंकि वो उस जज्बे में रह गई, क्योंकि 12th का तो क्या रट्टाबाजी के बेसिस पर, हाँ भाई ये फॉर्मेट में आएगा, इस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखना, बात खत्म। सीए में ऐसा नहीं है। सीए में ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। कभी आपने सुना है कि बीकॉम के बारे में या किसी और चीज के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या अपने देश के प्रधानमंत्री, राइट, कभी किसी ने कोई ऐसी चीज कही है क्या? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक 2 मिनट दे दीजिएगा मुझे, आपको आवाज शुरुआत में ना आए शायद से, तो अब हम क्या करते हैं, आपको आवाज लेके आ जाते हैं। आवाज मुझे पहले ये बताओ कि आवाज आ रही है क्या, फिर मैं आपको ये प्ले करूंगा। आवाज आ रही है क्या मुझे बताओ? कैन यू पीपल लिसन? आवाज आ रही है क्या? देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। तो बेटा जी क्या बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी? राइट, क्या बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी? आप बताइए जरा मुझे, आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं और आपको थोड़ा सा इसके बारे में सिंसियरली समझ में आने को हो ना कि आप क्या करने वाले हो। तो बेटा जी मैं आपको बताऊं कि एक सीए जब व्यक्ति हो जाता है और उसकी साइन जब होती है, राइट, तो कल मान लो आपके सारे पैसे कोई तो कोई बैंक में होंगे, एसबीआई में होंगे, या मान लो किसी प्रोविडेंट फंड में होंगे, एफडी में होंगे, शेयर्स में होंगे। सो बेटा जी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजा बेटा जी कि आपके पैसे कहीं ना कहीं तो होंगे। तो आप जो काम करने वाले सीए बनने के बाद में यू कैन साइन द बैलेंस शीट ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू कैन साइन द बैलेंस शीट ऑफ विजया बैंक, राइट, you can sign the balance sheet of Bank of Baroda, etc etc. So can I not say बेटा जी when you are going to sign the balance sheet, तो आपको पता है कि आप कितने ही लोगों के पैसों के बारे में गारंटी ले रहे हो कि भाई साहब मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैंने इसका ऑडिट किया और ये सब कुछ सही है। आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि भाई जी सीए कोर्स जो है ये आपको एक साइनिंग अथॉरिटी देगा, और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं तो लोग आप पर भरोसा रखेंगे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो यहां पर यह बात तो छोड़ दो कि पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, मैं तो बोल रहा हूं कि पेपर डिफिकल्टी आना चाहिए। पेपर क्यों डिफिकल्ट आना चाहिए? एकदम कॉमन सेंस की बात है बेटा, कॉमन सेंस लगाकर बताओ कि तुम कल को जाकर किसी प्रोविडेंट फंड की बैलेंस शीट को साइन करोगे और नलायक तू बिना सोचे समझे बिना पढ़े लिखे आगे चला गया, तो अब वहां पर जाके तू साइन कर रहा है और साइन गलत चीज पर कर दिया, तो क्या होगा पता है तुम्हें? तेरा अकेले का नुकसान नहीं है, तू तेरी सैलरी के लिए पूरे देशवासियों की भी बैंड बजा सकता है, क्योंकि अगर आप आपका काम सही नहीं करते हो तो उस केस में लोगों के पैसे वेस्ट हो सकते हैं, लोगों के पैसे में फ्रॉड हो सकता है। तो यहां पर आपको सिखाया जाएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब समझते हो? जैसे मिलिट्री में लोगों को सिखाया जाता है इंटीग्रिटी कि आप हमारे दुश्मन से मिली भगत नहीं करोगे, उसी तरीके से बेटा जी जब आप ऑडिट करते हो तब आपको ऑडिट के लिए सिखाई जाएगी इंटीग्रिटी। हर्षद भाई आपको ये सारी चीजें बताएंगे, बट मैं आपको यह बात बता दूं कि राजा बेटा जी इंटीग्रिटी सिखाई जाएगी, आपको टफ बनाया जाएगा, टफ बनाया जाएगा कि भाई आप एकदम इजीली गिव अप ना करो, आपके पेपर टफ रहेंगे, आपके लॉजिक्स को डेवलप किया जाएगा, आपके एक पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाएगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स पूरा भारत देश भर के लोग यहां पर ये एग्जाम्स देते हैं, और बेटा जी मैं आपको बता दूं रिजल्ट इज अ वेरी
व्हाट आई कैन से कंट्रोल्ड रिजल्ट, तो यहां पर 20% के ऊपर बच्चे पास नहीं होते, राइट। फाउंडेशन में मान ले कि 100 बच्चे बैठते हैं तो अराउंड 30 बच्चे पास हुए, 30% 35% रिजल्ट लगा तो मान लेते 30% पास हुए। अब ये जो 100 बच्चे अपियर हुए थे उसमें से 30% बच्चे पास हुए। इंटर में यही 30% बच्चे बैठते हैं और 30% का और 25% अगर मान लो रिजल्ट लग गया तो 7.5 बच्चे पास हुए एट इंटरमीडिएट। और इन 7.5 बच्चों का अगर मैं मान लू कि 20% रिजल्ट, ये होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि 20% रिजल्ट, तो 1.5 बच्चा पास हुआ। जिन लोगों ने 100 लोगों ने अपीयर किया उसमें से फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 1.5 बच्चा पास हो रहा है, मतलब राइट 1.5% रिजल्ट कहा जा सकता है सीए का, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दैट योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी टफ। तो अगर तुम ये सोच के आए हो ना कि भाई साहब मैं तो यहां पर क्लास में करूंगा और आराम से पास हो जाऊंगा, तो बेटा तुम्हारे अंदर मूर्खता की निशानी है। यहां पर क्लास में बैठने से सारे बच्चे पास हो जाते हैं, तो बेटा मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं तुम्हारे जाके पेपर लिख के आ जाता भाई। मैं तुमको खुद कहता कि तुम क्लास अटेंड कर लो, तुम आराम से पास हो जाओगे, बट क्लास करने से सिर्फ आप पास नहीं होने वाले। आपको बता दूं, और अगर किसी के पेरेंट्स से बात सुन रहे हैं तो मैं कह दूं कि आपके बच्चे ने रेगुलरली हर रोज पढ़ाई करनी होनी। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि सीए में फाउंडेशन ठीक है एक आध बार चल जाएगा, बट इंटरमीडिएट में पास होना मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं बेटा जी, समय आपका व्यर्थ ना करे बेटा जी, पूरी की पूरी जवानी वेस्ट हो जाएगी आपके इसके अंदर, पूरा का पूरा जिसमें आप करियर बना सकते हो वो वेस्ट हो जाएगी अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि बेटा जी इस कोर्स में तभी कदम रखना जब आप ये क्लियर हो कि आप पढ़ना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो, लॉजिक्स के दीवाने हो, अगर आप आगे जाना चाहते हो लाइफ में, राइट, खुद के बलबूते पर, तब जाके इस कोर्स को सिलेक्ट करना। अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूं बेटा जी, आपको क्या लगता है आपकी सैलरी कितनी रहेगी एट एन एवरेज? एक सीए जब क्लियर हो जाता है तो एट एन एवरेज सैलरी कितनी होती है शुरुआत में? मैं आपको बता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूं जितना मुझे पता है, 10 लाख के आसपास एक सीए की ये होती है इनकम। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा होती है, जो 1 2 3 अटेम्प्ट में हो जाते हैं उनकी अराउंड 10 लाख के आसपास सैलरी होती है, या 10 लाख के आसपास उनकी आमदनी होती है शुरुआत में। देखो अब ऐसा मत कंपेयर करो कि प्रैक्टिस में है तो शुरुआत में कम रहेगी, बाद में आगे जाके बढ़ जाती है। जॉब में है तो 10 लाख है, और अगर कोई सीखना चाहता है दूसरी कोई चीज तो उस केस में कम हो सकती है। बट कुल मिलाकर आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि 10 लाख एट एन एवरेज अगर हम सभी लोगों का मिली भगत कर देख ले तो 10 लाख रुपए पर एनम ये सैलरी होती है। अब इस 10 लाख को मैं आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक एम्प्लॉयर है, वो किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी तब तक नहीं देता जब तक ये एम्प्लॉय उसको पैसा कमाकर रिटर्न में नहीं दे देता। ऐसा कभी देखा है कि एम्प्लॉयर कभी एम्प्लॉय पर कोई उपकार कर रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर उपकार कर रहा है, ऐसा नहीं होता है बेटा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तभी रखता है जब एम्प्लॉय के अंदर वो स्किल सेट होता है, जब एम्प्लॉय उसके काबिल होता है तो एम्प्लॉय को रखा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए कमा कर दे रहा है तो इस एम्प्लॉय ने इसको कितना देने को ना, कम से कम 10 लाख रुपए कमा कर देने को ना, कम से कम मैं कह रहा हूं एट बेयर मिनिमम। ठीक है सर, हम समझ गए 10 लाख या 10 लाख के ऊपर भी। तो बेटा जी इस एम्प्लॉयर का कोई तो एक सेटअप रहेगा, कोई तो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कोई तो एक काम करता रहेगा ये, राइट। क्योंकि बेटा जी जब ये एम्प्लॉयर उसको सैलरी दे रहा है तो क्या ऐसे थोड़ी ना कि हवा में बैठकर या पेड़ के नीचे बैठकर काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। ये उसको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर कोई एक जगह बनाता है और वहां पर ये सारे लोग बैठकर काम करते हैं। तो बेटा जी समझने की कोशिश करो, अगर एम्प्लॉयर का रेट ऑफ रिटर्न है 20%, मतलब हर एक बिजनेस के अंदर रेट ऑफ रिटर्न होता है 20%, वो एम्प्लॉयर कमा रहा है, 20% वो एम्प्लॉयर अगर वो कमा रहा है तो बेटा जी क्या मैं बोलूं कि 100 रुपए के ऊपर उसको 20 रुपए मिल रहे हैं। तो कोई आदमी अगर कह रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो उसने कितने रुपए इन्वेस्ट करना होना, राइट। सो कैन आई नॉट से 10 into 100 डिवाइड बाय 20, सो ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 50 लाख। तो बेटा जी 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तब जाके बेटा जी आपको वो 10 लाख रुपए दे पाएगा। तो समझने की कोशिश करो, सीए को तुम ऐसे बोलते हो ना
कि आपको मैं बोलता हूं ना कि भाई सीए को 10 लाख रुपए दिए, तो बेटा सीए को 10 लाख रुपए दिए, इसका मीनिंग समझ रहे हो कि पीछे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो 10 लाख रुपए दे रहा है, तो उसको 10 लाख रुपए पहले कमाने भी पड़ेंगे, और 10 लाख रुपए कमाने के लिए उसको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 50 लाख रुपए, अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो। मतलब एक सीए अगर वहीं जाकर बैठता है करता है और उसको जो पे आउट मिलता है, तो बेटा जी उसके पीछे जो बैकग्राउंड में इन्वेस्टमेंट है, इट इज एटलीस्ट समवेयर अराउंड 50 लाख रुपीज। तो बेटा जी ये आपके ऊपर भरोसा होता है कि कोई आदमी आपके ऊपर दांव खेलने को तैयार है कि भाई साहब हम तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ये दांव खेल रहा है। और जो आदमी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो आपको 10 लाख रुपए कहां से नाकल दे देगा साल साल के, 20% रिटर्न है। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज टू गो इनटू इट, एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स पेइंग यू। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो बेटा जी आप कोई छोटी मोटी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर रहे हो, तो भगवान के लिए हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि मैं जो अभी पहले मेरे पास्ट का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बातें कर रहा हूं, कि आपको आपका 11th 12th में जो किया, जैसे मार्क्स मिले, उसको बेटा जी यहां पर कंपेयर करना उचित नहीं है। क्योंकि वो कंपैरिजन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि बेटा जी उधर के ऑब्जेक्टिव अलग थे और इधर के ऑब्जेक्टिव अलग है। वहां पर फेल होना मुश्किल था, यहां पर पास होना मुश्किल है। वहां पर बेटा जी आप आंसर लिख के आ जाते थे तो बेटा जी आपको स्टेप वाइज मार्किंग्स मिल जाती थी, बट अगर एग्जामिनर को यहां पर पता चल गया है ना कि इस बच्चे को नहीं आता है, इसके लॉजिक्स क्लियर नहीं है, तो दे विल नॉट गिव यू द मार्क्स, राइट? सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द, ये बेटा जी मैंने कुछ पेपर पैटर्न आपके लिए एनालाइज किए हुए हैं। जनवरी 2021 तक के पेपर एनालाइज किए हुए, जुलाई 2021 का पेपर एनालाइज करना बाकी है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जैन 21 एंड जुलाई 21 जो अभी पेपर हुआ वो भी, इन सारे पेपर्स को आपका कवर करा दिया जाएगा। ये क्लास में ही कवर होंगे। और मैं अभी आपको बताता हूं कि बेटा जी टोटली द नेचर ऑफ द पेपर इज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ऐसे 6 प्रश्न होते हैं। 6 प्रश्नों में से मैं बेटा जी बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है दैट इज कंपलसरी, दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड दिस इज फॉर 20 मार्क्स। दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी, दिस इज फॉर 20 मार्क्स। द रिमेनिंग 2, 3, 4, 5, 6, इन चारों प्रश्नों में से, पांचों प्रश्नों में से यू हैव टू सॉल्व एनी 4। सो इनमें से कितना? एनी 4। तो हाउ मेनी मार्क्स पेपर यू गेट? यू जनरली गेट क्वेश्चन पेपर ऑफ 120 to 125 मार्क्स। तो मैं आपको वापस बता दूं कि बेटा जी 6 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन 20 मार्क का होता है और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उनमें से एनी 4 होता है। और बात ध्यान रहे कि प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे सो देयर वुड बी 120 to 125 मार्क्स। व्हाई 125 आई एम सेइंग? आई विल एक्सप्लेन यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Now please focus. The question number 1 is generally an objective question which includes true and false, which includes distinguish between, which includes short notes, a small question. तो पहला जो क्वेश्चन होता है इट इज फॉर 2 मार्क्स इच। 2 मार्क के आपको यहां पर 6 प्रश्न मिलते हैं, राइट? कभी 6 प्रश्न मिलते हैं, कभी 5 मिलते हैं, कभी 6, 4 ऐसा कुछ भी मिल जाता है। तो बोलने का तात्पर्य है कि 2 into 6 ये जो है 4-4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलता है और 4-4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलता है। सो पहला क्वेश्चन जो होता है वो मैं बता देता हूं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ट्रू और फॉल्स। इट इज लिटिल बिट बेस्ड ऑन थ्योरी ऑल्सो। गो टू द नेक्स्ट। व्हेन यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, इट जनरली इंक्लूड्स 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और 10 और 5 मार्क्स। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपके ब्रेकअप में यहां पर मैं बता दूं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हियर वी गो। तो बेटा जी यू विल हैव 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स 5 मार्क्स, समटाइम्स 15 मार्क्स और 20 मार्क्स। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क के, 2 मार्क के, 4 मार्क के, 5 मार्क के, ये क्वेश्चन का वेटेज होता है एटलीस्ट अराउंड 70% प्लस, और 15 और 20% का वेटेज होता है अराउंड 20%, राइट? सो मैं आपको बोलने की कोशिश यह कर रहा हूं कि पेपर आपका टफ नहीं आता है, पेपर इजी होता है। क्योंकि आप देख लीजिए जिनका वेटेज कम है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 70 to 80% is for what? They are devoted to the questions which are below 10 marks each. तो अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क के नीचे आ रहा है तो वो टफ कैसा हो सकता है?
15-20 मार्क का क्वेश्चन समझ सकता हूं कि लेंदी है, डिफिकल्ट है. सो बॉयज एंड गर्ल्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीआई इज नॉट टू आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दे वांट टू टीच यू द होल ऑफ द गैमेट. मतलब पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करना चाहते हो पेपर में. इसीलिए बेटा जी 2-2 मार्क से लेकर 4-4 मार्क तक के क्वेश्चंस है. तो ध्यान रहिएगा कि 12th में जो सीख के आए थे, ये ऑप्शन में छोड़ के चला जाता हूं. ऑप्शन में कुछ भी नहीं छोड़ना है. आई रिपीट, इन सीए करिकुलम यू शुड नॉट लीव एनीथिंग इन द ऑप्शन. देखो ध्यान में रखना, आपके मां बाप के ड्रीम्स ये पूरे सीए कोर्स और इस एग्जाम से जुड़े हुए. आप मुझे बताइए, अगर गलती से भी एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाता है कि जो ऑप्शन में छोड़ा था आपने और वो कंपलसरी टाइप में आ गया, या ऐसा हो गया कि वो क्वेश्चंस आपको दूसरा जो है वो बन नहीं रहा ऑप्शन वाला, तो बेटा जी आप मुझे बताइए कि यहां पर हु इज गोइंग टू लूज? इट्स यू हु इज गोइंग टू लूज इट. तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े ना तो कर लेना. अगर मान लो 100 घंटे की पढ़ाई में अगर कोई आपको कहे कि भाई 10 घंटा और पढ़ ले बट तू श्योर शॉट पास हो जाएगा, और 100 घंटे में अगर मैं ये कहता हूं कि तुम पास नहीं हो सकते शायद से, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 110 आवर्स पढ़ता ही पढ़ता. मैं चांसेस पर नहीं जीता. तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सीए कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर कराते हैं पेपर में भी. तो उस केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यू राइट 100 मार्क्स पेपर एंड यू डोंट लीव एनीथिंग इन द ऑप्शन. वन मोर थिंग हियर ऑल्सो वी शुड रिमेंबर कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है. वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? What is the boiling point of the water? If you could answer me, right? Let me understand from you. क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है? टन टना टन 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 टना टन 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 टन. आजकल यूट्यूब भी लेट करने लग गया क्या रे? अरे पानी देना रे, पानी देना, पानी देना. तो तुम बोल रहे हो 100 डिग्रीज. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपने लिखा 100 डिग्री सेल्सियस. सो लेट मी आस्क यू, सपोज यू आर एट 98 डिग्रीज. So will the water convert into water vapor at 100 degrees? It gets converted into water vapor. But क्या आप 98 डिग्रीज पर उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? जल्दी से मुझे सोच के बताइए. Can you convert it into 110 डिग्रीज, सॉरी 98 डिग्रीज पर क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ए आंसर. तो बेटा जी यही आपका सिद्धांत बता देता हूं कि लॉ ऑफ नेचर. लॉ ऑफ नेचर क्या होता है? ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है. ये तो बता देता है रूल क्या है. रूल ये है कि 98 डिग्रीज पर वाटर बॉयल नहीं होता. तो अगर तुम जाके वाटर को बोलोगे या इस नेचर को बोलोगे क्या है यार इतनी सी बात नहीं समझता क्या, 2 ही तो डिग्री है ना, 98 डिग्रीज तो लेके आया ना, चल चल बॉयल हो जाना, तो वो बॉयल नहीं होगा. इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं 100 डिग्रीज पर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग बट इट डजंट बॉयल कंप्लीटली. मतलब अगर आप 100 डिग्रीज पर आकर पहुंच के छोड़ दोगे उसको तो इट इज नॉट गोइंग टू इवेपरेट. तो जब आपको फाउंडेशन से इंटर में जाना है तो जो करना है वो करना है. यू जस्ट कैनॉट बी बेगर कि मेरे को दे दो सर, मैं इतना सही पड़ेगा बट मेरे को दे दो सर, ऐसा वाला अगर एटीट्यूड रहेगा तो नहीं चलेगा मेरे भाई. जैसा वाटर 98 डिग्रीज पर बॉयल नहीं करेगा, वो 0 से लेकर 98 डिग्रीज तक आया, इतना बड़ा सफर करके आया, बट फिर भी राजा बेटा जी इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल बिकॉज इट कैनॉट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर अनलेस एंड अंटिल एटलीस्ट इट इज 100 डिग्रीज एंड यू जस्ट कैनॉट टच 100 degrees and come back. You have to stay at 100 degrees for longer. So I am just trying to tell you कि बेटा जी आपको भी अगर फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में जाना है, so whatever is being required for the CA course you have to complete it completely. You cannot just say that कि यार इतना तो किया ना सर फिर पास हो जाने को. नहीं, फिर अगला अटेम्प्ट आता है. हमारे यहां पर एक पोएम है, फाइट फाइट नेवर सरेंडर, फाइट फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर में देर इज नवंबर, Where there is a will, there is a way. After November, there is a May. तो बेटा जी अगर इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो ना, मई नवंबर हमारे मंथ्स होते हैं जब एग्जाम्स होती है सीए की. अगर इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो तो एक चीज के बात ध्यान रखिएगा बेटा जी कि आपको यहां पर 100% देना है एंड कोई भी चीज ऑप्शन में नहीं छोड़. ये आज ही गार्ड मान लो, ऑप्शन में नहीं छोड़ना है. डोंट गो इन अ सीए कोर्स लाइक अ बेगर कि मैं इतना किया हूं मुझे पास करा दो. गया वो दिन.
और यहां पर पासिंग परसेंटेज कितना है, 50 मार्क्स इज द पासिंग परसेंटेज फॉर एग्रीगेट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40 चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए. 50% ऑफ द मार्क्स इज व्हाट यू शुड गेट इट. एंड इसके अंदर आपको बाकी की चीजें बताई देंगे, हर एक फैकल्टी की कौन से 2 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं और कौन से 2 पेपर रिटन बेस्ड होते हैं. लॉ एंड अकाउंट्स पेपर आर गोइंग टू बी रिटन पेपर, ऑलराइट, एंड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर गोइंग टू बी एमसीक्यू बेस्ड पेपर, ऑलराइट. सो लेट्स गो ऑन. ऑलराइट, तो बेटा जी इसका ही एनालिसिस मैं भी आपको बता देता हूं. तो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक इट अप. जुलाई का नहीं है बट बाकी का पूरा है. तो इसके अंदर देख लो बेटा जी 20 मार्क्स का, इधर ये देखो 70 मार्क्स क्वेश्चंस वर आस्क्ड, 70 मार्क्स क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ 10 मार्क्स. मतलब 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 मार्क के लिए और 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे 10 एंड 4 मार्क के पूछे गए थे 8. सो इफ यू टेक अप द टोटल which is below 10 marks or 10 marks, so I can say 70, 80, 88 marks paper. I cannot say it was difficult. It has to be easy क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन डिफिकल्ट आता ही नहीं है. Now boys and girls, can I not say year 60, year 25 and year 8? So beta ji what would be the amount? 60 plus 25 plus 8 will be equal to how much? 93 marks. 93 marks was asked in the easy questions. Can you please check? मतलब out of 120 marks you are getting 88 marks which are easy, 93 marks which are easy. Now let's go on. 80, 20 and 8, year 108 marks का क्वेश्चन पूछा गया था, वो easy था. Then 60, 25 and 8. So beta ji can I not say here also 93 marks was asked in form of easy questions. Then boys and girls, I say 70, 30 and 8. It is 108 marks. 108 marks was the paper which was easy. And boys and girls, here 60. I'm sorry. And here I'll say it was 60 marks, 25 marks and 8 marks. So it is again here 93 marks. So but what have you understood? Bare minimum 88 marks question were asked on the easy basis. So बेटा जी कभी भी ध्यान में रखना, किसी टॉपिक में भी कोई पार्ट ऑप्शन में मत छोड़ना, क्योंकि आप ऑप्शन में छोड़ोगे वो क्वेश्चन आ जाएगा. क्योंकि ये क्या करते पता है क्या, टॉपिक में से भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को निकालकर क्वेश्चन पूछते हैं आपको, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि राजा बेटा जी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, वो ये देखते हैं कि आपको सारी चीजें आती है कि नहीं आती, और वो कहीं से भी कोई भी चीज लाकर छोड़ देंगे आपके सामने एंड यू हैव टू सॉल्व इट. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. के अलावा और एक चीज बात ध्यान में रखना कि द पेपर वुड बी लेंदी. तो ये पेपर लेंदी रहने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कि आप जाओगे पेपर में बैठोगे और आराम से हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है बेटा जी. दिस पेपर इज गोइंग टू बी लेंदी, सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. You need to give a lot of test series. So test series के there are 2 options. One is there is a test series which is available on SPC. In case you want to have a separate test series, you can buy it. But apart from that, class में भी test series हमारी conduct होती है और वो test series के पेपर आपको चेक करके होंगे. राइट जैसे आज एक मॉक पेपर होने वाला है हमारे ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स का, और उसके बाद में 5-7 दिन बाद उनका एक पेपर होने वाला जिसका चेकिंग होगा, और ऐसे हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपका होगा और इसके बारे में शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा. इन टेस्ट सीरीज को आपको मोटिवेट करने के लिए इस टेस्ट सीरीज के ऊपर प्राइजेस भी रखे जाते हैं एंड दिस प्राइजेस आर गिवन टू यू. ऑलराइट, सो टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगी और टेस्ट सीरीज आई कैन टेल यू दैट इट इज अराउंड 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस. सो जितना आपका राइटिंग प्रैक्टिस है, जितना आप फास्ट लिख सकते हो, उतना आपका पासिंग के चांसेस ज्यादा बढ़िया है. इसको इस एंगल से समझो बेटा जी, सिंपल सा लॉजिक है. सपोज आई टेल यू दैट यू राइट डाउन 100 मार्क्स का पेपर एंड यू हैव टू स्कोर 50. इट इज इजी, राइट? सो यू हैव टू स्कोर 50%. But suppose you have written a paper of 80 marks only. So you write paper of either 100 and you have to get actually get minimum marks. So बेटा जी यहां पर you have to get minimum marks is 50. 80 में से भी 50 लिखना है. अगर आप 70 मार्क्स का लिख के आएंगे तो भी 50 मिलना है. मतलब आप कितना पेपर लिख के आ रहे हो उसके बेसिस पर आपके पासिंग मार्क्स नहीं चेंज हो रहे. सो अगर आप चेक करेंगे, सो 50 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, सो यहां पर कितना परसेंटेज आपको लेके आना पड़ेगा? 62.5%.
और यहां पर कितना लेके आना पड़ेगा 50 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, सो इट इज 71.42%। और बेटा जी ध्यान रखना ये परसेंटेज आपको लेके आना धीरे धीरे अब मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव टू राइट फास्ट। आई एम सेइंग यू ऑन द डे वन यू हैव टू राइट फास्ट एंड यू हैव टू राइट लेजिबल, क्योंकि पेपर लेंदी आने वाला है। मैं आज आपको डे वन को बता रहा हूं, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर पेपर लेंदी आता ही है, आपको उसको कंप्लीट कर दे आना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा 12th के इसमें फ्लो में रह जाता है, 12th के फ्लो में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बस ये इतनी सी बात बता रहा था, आशा करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सो कैन वी गो अहेड नाउ। तो ये हो गया था बेटा जी आपके परसेंटेज के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे तो ले लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। और ये चीज जैसे आपका ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप में भी मैं डलवा दूंगा ये सारी चीजों को, बट आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो लेकर रख लीजिए। तो जो ब्रेकअप मैंने आपको दिया था वही ब्रेकअप यहां पर भी है कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आए थे, और अब इसमें से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो बेटा जी क्या हुआ, सिलेबस शुरुआत में था वो बहुत वास्ट था, एंड देयर आफ्टर द सिलेबस वाज रिड्यूस्ड, कर्टेल्ड। तो अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं बेटा जी। ये फाइनल चार्ट ये रहा। तो दिस इज द थिंग। अब इसके अंदर बेटा जी मैं आपको बता देता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाज आस्क्ड एवरी टाइम इन ईच एंड एवरी एग्जाम, 10 मार्क से लेकर 5 मार्क के लिए। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाज आल्सो आस्क्ड, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करना ही करना है, राइट। प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया। एवरेज ड्यू डेट प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया। पार्टनरशिप प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया, 4th टॉपिक, राइट। Then NPO, almost every exam they have asked you. 5th topic, non-profit making organization. Company final account, every year they have asked you. 6th नंबर का टॉपिक, राइट। तो बेटा जी ये हुए जो हर एक एग्जाम में पूछे गए और मुझे लगता है कि आगे भी पूछे जाने वाले। इसके अलावा डेप्रिसिएशन 7वां, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेप्रिसिएशन भी पूछा जाता है रेगुलरली। देन अकाउंट करंट, ये भी रेगुलरली पूछा जाता है। Then boys and girls, sale or return basis, this is also asked regularly. So can I not say it is 9th important topic and consignment is the 10th important topic. So अगर आप मुझे बताएंगे कि sir which are the 10 top important topics, so these are these 10 topics, so you can write it down कि पहला वाला टॉपिक है, it is what, rectification of error, very important. BRS, bank reconciliation statement, again very important. Then depreciation, very important. Then एवरेज ड्यू डेट, पार्टनरशिप। अच्छा मैं फाइनल अकाउंट कैसे छोड़ दिया यार, ये 11th होगा। पार्टनरशिप मतलब आपने जहां पर लिखा था सिलेबस वहीं पर अगर आप चाहो तो आप उसको मार्क करके रख दो। फाइनल अकाउंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंपनी फाइनल अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट करंट वेरी इंपॉर्टेंट। Goods sold on sale or return basis very important, and consignment is also very important. So these topics will fetch you very good marks और इनको आपको परफेक्ट करना ही करना है। तो हमारे क्लास में भी जब हम टाइम डिवोट करते तो हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले हम ले लें, और वो टॉपिक्स मैंने पिछली ओल्ड बैच में भी ऐसे ही किया और आपके बैच के साथ में भी कुछ इसी तरीके से किया जाएगा। उसके वजह से आपकी डे 1 से जो टेस्ट सीरीज होती रहती है उसकी प्रैक्टिस रिपीटेडली होने की वजह से आप उसमें पास होने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अब आपको मैं क्लास के बारे में बता दूं कि क्लास किस तरीके से कंडक्ट होती है। तो क्लास में बेटा जी आप हमको इस तरीके से क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरी फाउंडेशन की बैच है। ए फाउंडेशन के बच्चों, अगर तुम में से कोई कुछ बच्चा सुन रहा है तो बेटा जी यार ओपन करो ना ग्रुप को। फाउंडेशन दिख नहीं रहा है, अरे ग्रुप को ओपन कर दो भाई, फाउंडेशन। So this is how it will appear there. I hope you people can see it now. और CA फाउंडेशन के ग्रुप को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये देखो मेरे साथ बातें करेंगे अभी बच्चे। तो इस तरीके से आप हमसे बात कर सकते थ्रू टेलीग्राम। ओके, सो मैं फाउंडेशन के ग्रुप को ओपन कर देता हूं। हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? हाँ रसगुल्लो, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? एक ब्यूटीफुल से स्माइल दो। आज शाम को मिलूंगा तुम सभी लोगों को, है ना?
तुम्हारे जो नए दोस्त आए उनका स्वागत करो। अरे मुझे क्या हेलो बोल रहे हो, बच्चों को हेलो बोलो, राइट। सो दिस इज हाउ ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करो। एंड देन आवर किड्स आर गोइंग टू चैट फ्रॉम हियर एंड वी कैन रिप्लाई टू यू। ओके, सो आपकी जो कोई भी क्वेरीज होगी वो रिप्लाई कर दी जाएगी यहां से। तो ये ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये ग्रुप बेटा जी सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको उसके लिए आपकी ये भेजनी पड़ेगी रिसिट, आईडी, राइट, फोटोज, और उसके बाद में ही आपको ऐड किया जाएगा। जो नंबर आप बोलेंगे उसके अंदर ऐड किया जाएगा। हर व्यक्ति को इसके अंदर एंट्री नहीं है, तो द वन हु इज रजिस्टर्ड ओनली कैन गेट एंटर्ड हियर। इसके अंदर कुछ एडमिन भी होंगे, अगर आप बातें करेंगे गलत, कुछ भी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको इसमें से बैन कर दिया जाएगा। एक दो बार बैन किया जाता है और वापस आपको ऐड भी कर लिया जाता है, बट तीसरी बार में आपको एक बार बैन कर दिया तो फिर उसके बाद में आपको ऐड नहीं किया जाएगा, राइट। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि आपका एक ग्रुप होगा। उसके बाद में आपको मैं मेरे नोट्स दिखाना चाहता हूं। तो प्रत्येक नोट्स में क्या होता है, अब नोट्स 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 के बारे में बता दिया जाए आपको। ये देखो आपके नोट्स कैसे होते हैं। तो आपको ऐसी टोटल 5 वॉल्यूम मिलने वाली है। आई रिपीट, 5 वॉल्यूम मिलने वाली। अरे सीए फाउंडेशन की बुक्स देना। हाँ, ये ऐसी आपको 5 वॉल्यूम्स मिलने वाली है। वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, सॉरी 4 है ये, सॉरी। फिर ये वॉल्यूम नंबर 2, ये 3 और ये 5। और इसके अलावा आपको एक छोटी पॉकेट बुक भी मिलेगी जिसका नाम है कीनोट्स। ये कीनोट्स है क्या? अरे कीनोट्स है क्या? कीनोट्स है क्या? ओके, कीनोट्स अभी खत्म हो चुके हैं, मेरे पास नहीं है, बट आपको इस तरीके से 5 बुक्स मिलेगी। और ये 5 बुक्स किस तरीके से होती है, तो मैं एक वॉल्यूम आपके सामने ओपन करके दिखाता हूं। तो मान लेते हैं कि गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसके अंदर जो फर्स्ट पेज होगा वो इंडेक्स होगी, ओके। और इस इंडेक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर लिखा हुआ रहेगा R1, R2, R3। ये हमारे इंटर के कीनोट्स है। ऐसे एक छोटी सी बुक रहेगी जिसको आप समराइज कर सकते हो। ये कलर बुक रहती है, तो समराइज करने के लिए आपको एक बुक मिलेगी हमारी तरफ से। सो दिस इज इट, दिस इज द काइंड ऑफ बुक यू आर गोइंग टू गेट। So now I am saying R1, R2, R3 ये क्या होता है? So this is revision 1, revision 2, revision 3। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं सारे ICI के क्वेश्चंस, मॉक पेपर के क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम पेपर्स, RTP, MTP, मॉडल टेस्ट पेपर्स भी अगर कुछ होंगे तो जितने भी क्वेश्चंस ICI इश्यू करती है वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर कवर कर लेते हैं। सो बेटा जी एक बार भी आपको ऐसा दूसरी जगह पे जाके बुक कोई देखनी है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लास में कवर करा दूंगा, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू विल हैव क्वेश्चन नंबर क्लास वर्क 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से R1, R2, R3। ये रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 है। आपको कम से कम 3 रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट के करने अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसके लिए ये दिया हुआ है। तो अब इसमें स्पेशल पॉइंट्स क्या है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, तो आपने ये डालकर रख दिया। फिर यहां पर लिखा वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। फिर इधर लिख दिया रिवाइज बिफोर एग्जाम। तो ये आपकी एक समरी शीट हो गई। इस समरी शीट को देखते ही आपको यह पता चल जाएगा कि बेटा जी इस टॉपिक को आपको करना कैसा है और कौन से क्वेश्चंस आपको करने और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। तो बुक को बहुत ध्यान में रखकर हमने डिजाइन किया है। बेटा जी इसके पहले मैं ऑथर हुआ करता था, एंड इसके पहले मतलब मेरा फर्स्ट जॉब, सो आई वॉज अ ट्यूटर कम ऑथर एंड आई यूज टू वर्क फॉर यूके बेस्ड कंपनी और IFRS। तो वहां पर बेटा जी मैंने कई सारी चीजें साइकोलॉजी की भी पढ़ी, और साइकोलॉजी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक वकील के जैसे होना है। वकील जब कभी भी कोर्ट में जाता है और जब वो केस लड़ता है, तब वो केस लड़ते वक्त बहुत मुश्किल केस होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, अलग अलग लोगों के फैक्ट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको समराइज कर एक चिट्ठी पर लिख लेते हैं, और उसके बाद में जो भी उसके नोट्स होते हैं वो उसको फोल्ड करके रखते हैं। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, जब वो उनको फाइट करना होता है कोई केस, तो उस केस में वो उन मेन पॉइंट्स को उद्देश्य कर उस पर बात करते हैं। और वो क्या करते हैं, पूरी फाइल होती बड़ी मोटी, उस फाइल के समरी पॉइंट्स ऊपर होते हैं। तो समरी पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी मैं बता दूं, हमारी पुरानी बैच के बच्चे हैं, बहुत जोरदार बच्चे हैं, राइट।
पहले बहुत शैतानी करते थे, बहुत नालायकपना करते थे, और तुम भी करने वाले, तुम भी साधु संत नहीं रहने वाले, मुझे पता है। तो ये बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से अब चार्ट बना रहे, सारे तो नहीं बना रहे, वो भी नालायक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि डे 1 को अगर आपको पास होना है तो चार्ट बनाइए, समरी बनाइए, समरी बनाएंगे तो बेटा जी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपको। दिसंबर 11 का अटेम्प्ट, 21 का अटेम्प्ट और मई 22 वाले अटेम्प्ट के पास तो टाइम है, तो उन्होंने भी चार्ट बनाना, चार्ट बनाने से आपको रिवीजन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये टिप है बेटा पास होने की। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम एग्जाम के पहले कुछ करके पास हो जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। डे टू डे बेसिस पर जो आप स्टडी करते हो उसके बेसिस पर आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और पास ही नहीं यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए, फिर उसके बाद में आपकी इज्जत, शोहरत, नाम, ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि सामने वाला आदमी आपको इज्जत देता है जब आपके अंदर कंटेंट हो, तो है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। अब नीचे जब हम जाते हैं तो बेटा जी क्वेश्चंस यहां पे शुरू होते हैं, ये देखिए इस तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास वर्क। ये क्लास वर्क है। अब इस क्लास वर्क क्वेश्चन के नीचे ऐसा एक बॉक्स बनाया हुआ रहता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे अगर आपको इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है तो वो आपको बताना है। तो जो मेन इंडेक्स है उसमें कौन से क्वेश्चन रिवाइज करना है, अब इधर आकर आपको लिखना है रिवाइज ट्रांजैक्शन फोर्थ, ट्रांजैक्शन फोर्थ, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड। ये आपको सारे पॉइंट्स लिखकर रखने। इसके वजह से क्या हो जाएगा बेटा जी, मैं मेरे बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं कि क्वेश्चंस आर आंसर्स। क्वेश्चंस आर आंसर्स का मतलब क्या बेटा, क्वेश्चन ही तो बताता है कि क्या लिखना है। अगर क्वेश्चन है ही नहीं तो हम क्या आंसर लिखेंगे और क्या रट्टा मार कर जाएंगे। बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आंसर को। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि आई ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करो, और ये क्वेश्चन से पढ़कर आप जब इधर लिख देते हो तो जब भरोसा मानिए, जिस बच्चे ने मेरी बात ये सुनी वो जब जाके क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है, क्योंकि उसने नीचे पॉइंट जो लिखे रहते हैं उससे आप उसको क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ने का, इसके बारे में एनालिसिस हमेशा क्लियर रहेगा। तो बेटा जी ध्यान रहे कि क्वेश्चंस आर आंसर्स एंड हेंस यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, वेरी प्रॉपरली। जितना अच्छे से, जितना प्रेम से, जितना बढ़िया से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना इजीली आप आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय बुक्स। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी बुक्स मैं कवर करा दूंगा। और मैं कोई विशाल काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बहुत भारी आदमी हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना काम करता हूं कि जो आपके सिलेबस में वो सारा का सारा चीज मैं ले लेता हूं, और वो चीज मैं आईसीआई के बेसिस पर हम कवर कराते पूरा, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो बेटा जी आपने खाना पीना, जेवायचं, झोपायचं आणि खाना पीना सोना, राइट। और उसके अलावा तुम्हारे डेली कोर्स के अलावा बाकी की चीजें भूल जाओ। जिनका दिसंबर में अटेम्प्ट है भूल जाओ। और अगर मई वाले बच्चे हैं तो ठीक है, तुम प्लान कर कर कुछ कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, प्लान कर कर बाहर जा सकते हो, बट प्लान कर कर अगर आप बिना प्लानिंग के जाओगे तो आपको वो आदत लग जाएगी और सीए कोर्स ऐसे ही टैकल नहीं होगा। तो वेदर यू आर पेन ड्राइव क्लास स्टूडेंट, ऑन ड्राइव क्लास स्टूडेंट्स, लाइव क्लास स्टूडेंट्स, आपको डिसिप्लिन में हर रोज लेक्चर लाइव करने की जरूरत है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि बेटा जी हमारे यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो जब टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो हम शायद आपका लेक्चर ना ले पाए, बट उसका कॉम्पेंसेशन हो जाएगा बाय टेकिंग द एक्स्ट्रा लेक्चर। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेटा जी इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप हमें ब्लेम नहीं करेंगे। मैं मेरे कोर्स के प्रति, मैं मेरे प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा सजग हूं, बहुत ज्यादा जागरूक हूं, और मैं इसको लाइटली लेता नहीं हूं। क्योंकि बेटा जी तुम में से तो एक आध बच्चा फिर भी लाइटली ले लेगा, बट मैं एज ए फैकल्टी कैसे लाइटली ले लूं। क्योंकि आप मुझे बताइए, एक तो इतने सारे बच्चों का करियर हम पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा बेटा जी आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, और आपकी ग्रोथ तभी मुमकिन है जब आप हमारे क्लास के बारे में तारीफ करेंगे तभी। तो यहां पर एसपीसी में एक भी फैकल्टी आपको लाइटली नहीं लेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। ऐसी भावना कभी मत आने देना कि आपसे पैसे ले लिए तो अब सर छुट्टी दे रहे, ऐसा नहीं है। कई बार हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स ये भली बात ही जानते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि उस केस में लेक्चर नहीं हो पाता है। कभी करंट ऑफ हो जाता है, इन्वर्टर होने के बावजूद भी कभी ये करंट ऑफ हो जाता है, कभी ये इंटरनेट नहीं चलता है, राइट, कभी कभी लैपटॉप परेशान करने लगता है। तो देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर, अदरवाइज योर एक्सपीरियंस वुड बी वेरी फुलफिलिंग, you will enjoy a lot, you will learn a lot of new things, but this class is only for your learning education। अगर आप यहां पर और कोई भी चीज सोच के आ रहे हो तो फिर गड़बड़ है। अकाउंट्स की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तहे दिल से पढ़ाऊंगा, और मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए, बट एट द सेम टाइम क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राइट। डे 1 को ही क्लियर कर दिया, तो मैंने ऐसी कोई चीज करी नहीं कि बताया नहीं कि भाई साहब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरे क्लास करने से आप पास हो जाएंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके आप पास होंगे।
टाइमिंग के बारे में बेटा जी आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें बता दी जाएगी। कल से आज राज सर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, थ्रोट खराब हो गई थी उनकी, इसलिए राज सर अभी ये लेक्चर नहीं ले पाए। ये एक्चुअली राज सर का स्लॉट था। मैं आपका लेक्चर कल से जब लूंगा तो 5 o'clock लूंगा इन द इवनिंग। आई रिपीट, आई विल बी टेकिंग योर लेक्चर इन द इवनिंग एट 5 o'clock। कल से मेरा लेक्चर 5 o'clock को रहेगा, बट अदरवाइज राजा बेटा जी आपको बाकी के टाइमिंग्स आपके फैकल्टीज बता देंगे, राइट। और आपको उसके अलावा भी हमारे ग्रुप की तरफ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। 1-2 दिन तक यूट्यूब पर आप लाइव रहिएगा तो आपको और इजीली पता चलती रहेगी। दैट ओके। तो ये रेगुलर टाइम रहेगा? नहीं, ये रेगुलर टाइम आपके लिए नहीं है, आपका रेगुलर टाइम रहेगा इन द इवनिंग 5 o'clock। इज दैट ओके? सो इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय। तर तुम्ही मराठी आहात का? मला मराठी एकदम व्यवस्थित येते बाळा, पण मी मराठी नाही आहे, पण माझा जन्म महाराष्ट्राचा आहे, त्यामुळे मी म्हणतो की हो मी महाराष्ट्राचाच आहे। मराठी एकदम व्यवस्थित बोलतो, शुद्ध मराठी बोलतो, मराठी भाषिक आहे, ठीक आहे। अजून काय हवंय सांग? कुछ दिन तक यू विल बी हैविंग कुछ दिन तक आपके ये क्लासेस चलेंगे यूट्यूब पर, एंड देयर आफ्टर वी विल बी शिफ्टिंग टू एन एसपीसी ऐप, और एसपीसी ऐप में ये सारी चीजें हम करते रहेंगे। पीसीके और बीसीआर क्लास इसके थोड़ी देर बाद में होगी, राइट। आपको 2 बजे के आसपास क्लास होगी। पीसीए दैट इज बीसीआर क्लास आपकी 2 बजे शुरू होगी, ठीक है। सर अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो हाँ बेटा वो ऑप्शन दिया है हमने, अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो आपको बहुत तहे दिल से गले मिलकर आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि यार हम भी बोर हो जाते हैं कई बार, तो आपका स्वागत किया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी ऑफलाइन के साथ साथ। इज दैट ओके? और लॉ की क्लास बेटा जी अभी 1 बजेंगे, आपकी लॉ की क्लास शुरू होगी 2 बजे के आसपास। वाईजी गेमर तुम कब पढ़ोगे ये सारी चीजें बता दी जाएगी, अभी कुछ दिन क्लास कर लो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। लॉ क्लास 2 बजे होगी, आई रिपीट लॉ की क्लास 2 बजे होगी। आपका शेड्यूल बता दूं पूरा, तो 2 से 3 बजे तक आपका बीसीआर रहेगा, 2 से 3 बजे तक आपका बीसीआर रहेगा। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, और मैं खुद आपको शब्द दे रहा हूं यहां पर बैठकर कि बेटा जी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर साइंस से कॉमर्स में आपको जो शिफ्ट होना है, माइग्रेट होना, बहुत आराम से करा देंगे, चिंता मत करना, सिर्फ डरना मत, और किसी और की बातों पे भरोसा मत रखना। भाई साहब मैं इधर बैठा हूं, तुम मुझसे बात करना, मैं जहां तक पॉसिबल होगा आपसे बात करूंगा, और बोल रहा हूं कि डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, हो जाएगा सब कुछ, है ना। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट डरना मत। जिनकी इंग्लिश कमजोर है, कोई एक बच्चा पूछ रहा था इंग्लिश कमजोर है, तो उनको डरने का है क्या, तो मैं उनको बता दूं कि उनको भी डरने की जरूरत नहीं, बट इंग्लिश को स्ट्रांग करना है। और बेटा अगर मान लो तुम सीए कोर्स करते हो नहीं करते हो, बट ये इंग्लिश की भाषा जरूर सीखना बेटा जी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे अभी हम वेबसाइट पे जाते हैं, अगर ऑनलाइन काम करना है तो बेटा जी वो इंग्लिश में होता है, राइट। तो इंग्लिश में आपको चीजें आना जरूरी है, तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, भले ही आप कोई भी कोर्स करो। सर मॉड्यूल प्रैक्टिस करना है आपका बुक, बेटा जी दोनों ही चीजें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉड्यूल पूरा का पूरा 100% में कवर करा दूंगा। पूरा अकाउंट्स यूट्यूब पर होगा क्या? नहीं बेटा जी, अकाउंट्स के कुछ लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स यहां पर यूट्यूब पर होंगे, और उसके बाद में यू विल बी शिफ्टेड टू द एसपीसी ऐप, राइट। उसके लिए आपको अगर एडमिशन लेना है तो swapnilpatniclasses.com इस पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। या फिर यहां पर एक ये भी रहता है, उसके लिंक भी होते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर भी जाकर देखेंगे तो आप वहां से भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स इट्स टाइम टू से बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और ध्यान रखिएगा। जाते जाते एक वीडियो दिखा के जा रहा हूं आपको, जो बच्चा इस वीडियो को फॉलो करेगा वही बच्चा आगे जाएगा, तो प्लीज समझने की कोशिश करना कि आपको सीरियस नहीं रहना है, मेरा बच्चा मुझे चाहिए सिंसियर। तो जाते जाते एक वीडियो देखकर जाते जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। गर्ल्स विद दिस वीडियो आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू दैट कि मेरे क्लास में आपको हर एक चीज की छूट है, मस्ती करो, डिसिप्लिन रखना, बस मस्ती करो, अब बातें कर सकते हो, राइट।
तो सीरियस मत रहना, सिर्फ सिंसियर रहना, है ना, एकदम सीरियसली बातें मत करना। तो बाकी मुझे पता है कि तुम छोटे हो, मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो कितनी मस्ती किया करता तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब इतनी मस्ती किया करता था। तो आई एम टेलिंग यू कि आप मस्ती कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे वो बच्चों में जब बचपन दिखता है ना तभी मजा आता है। तो यू आर ऑल फ्री टू इंटरेक्ट विथ मी, मस्ती कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन नीड्स टू बी मेंटेन्ड। दैट्स इट विद दैट बॉयज एंड गर्ल्स। So I'm signing off. Bye bye. God bless you all. Take care. Khuda Hafiz. Lots of love. Right?